Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last time we discussed Taylor and Maclaurin polynomials and extended the discussion to Taylor and Maclaurin series. When we say Taylor and Maclaurin polynomials, we mean finite polynomials. We first developed the idea that how Taylor or Maclaurin polynomial can be developed. So we are given a function that can be differentiated n times at some point x is equal to x naught. Find a polynomial of degree n with the property that the polynomial value of the polynomial and the values of its nth derivative match those of the function values and its derivative values at x naught, x is equal to x naught. That means if x naught is equal to value of the polynomial at x naught, then f first derivative at x naught is the first derivative of polynomial at x naught. Second derivative value of the function equal to second derivative value of the polynomial. Using this property, we keep on calculating. We consider this arbitrary polynomial of degree, say k. To start with, we considered x naught to be 0. That means function value and polynomial value and all their derivatives will be evaluated at x naught is equal to 0. So using these properties, अगर हम polynomial में directly x is equal to 0 रखें, so polynomial will yield only a naught, the first constant, and the function value has to be equal to this. That means in a way we have found a naught as to be the function value at 0. Then we take the derivative of the polynomial, put x is equal to 0 in this, in which case we get the derivative of polynomial at x equal to 0 equal to a1, which is the second coefficient, which is the coefficient of x power 1 term, which comes out to be equal to the derivative value at x equal to 0 of the function. Second derivative length. So when we take the second derivative, that means the derivative of this term goes off, and 2a2 is the result of the second derivative of the polynomial at 0, which matches the function value, the second derivative value of the function at 0. And this equation leads to the result that a2 in this polynomial is equal to 1 upon 2 factorial into second derivative of the function at 0. Similarly, a3 comes out to be 1 upon 3 factorial of the third derivative at 0. a4 comes out to 1 upon 4 factorial into fourth derivative. And in this way, after getting all values of all the unknown coefficients, a0, a1, etc., ये सब हमने फंक्शन की डेरिवेटिव वैल्यू की टर्म में मालूम कर ली है और पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दिया. So we get this what is known as Maclaurin's polynomial of kth degree. Or you can say that this is a kth degree approximation of the function. You may remember the linear approximation formula when approximation is done with the value of the function and its derivative at 0. Quadratic formula, that means we go up to second degree term here. Cubic approximation, that means we go up to third degree term in this Maclaurin polynomial. Taylor polynomial is the polynomial in which we consider function and its derivatives to be defined at some arbitrary point x equal to x naught, in which case we can repeat the previous exercise that we have done with x naught is equal to 0. And we start finding out the values of a naught, a1, a2, etc. In that case, we will obtain this polynomial, function value at x naught, then derivative of the function at x naught into x minus x naught, blah, blah, blah.
So when we talk about the Maclaurin polynomial, only power of x are involved. When we talk about Taylor polynomial, it is the power of x minus x naught. That is the contrast between Maclaurin and Taylor polynomial. Maclaurin polynomial can always be obtained when a function has derivatives defined at function is defined at 0, derivatives are defined at 0. जिस ऑर्डर तक के डेरिवेटिव डिफाइंड एट 0 है उस डिग्री का हम मैक्लॉरिन पोलीनोमियल लिख सकते हैं. इसी तरह if for some function the derivative and function values are defined up to order say nth derivative, then we can write down the Taylor polynomial up to power n. Of course, both these polynomials, whether it is Taylor polynomial or it is Maclaurin polynomial, it is not exactly representing the function as we have written here, that this polynomial is approximately equal to the function. So the difference between the function value and the polynomial value at any value of x in the domain of the function is either called error, or we also call it remainder after n terms. We'll talk about the remainder later on, but not too much. Remainder is just in the original Taylor polynomial, the derivative is up to order n. And later on, we'll find that remainder here Rn. A function is equal to polynomial plus remainder. Remainder will be of order k plus 1 or n plus 1. ये एक remainder estimation theorem है, but we're not going to go into the details of this. In a higher course on advanced calculus or real analysis, we will explore the details of this remainder there. Then we start talking about exercise 9.7, in which we are mostly concerned with finite expansion. And I discussed some problems in question number 1 and 2. What we are asked that we have to write down local quadratic approximation, yani only second degree approximation. So question number 2B के अंदर 2B या 2, this is 2A, sorry, where we have considered sin x. Now, if function given is sin x and we have to obtain Taylor polynomial up to second degree, we have to take value of the function at pi by 2 and the derivative value of the function at pi by 2, and the powers of x minus pi by 2 should be involved. So function value at pi by 2, sin pi by 2 is 1. Function का derivative cos x with cos pi by 2 is 0. Function का second derivative minus sin x. So minus sin pi by 2 is minus 1. So since we are asked to go only up to quadratic approximation, we go to the second degree term. And since it is Taylor polynomial, x minus x naught की powers आएंगी, तो x naught की value pi by 2 है, तो x minus pi by 2 into derivative value x minus pi by 2 whole square upon 2 into second derivative value. So the second degree approximation, Taylor approximation of sin x is equal to this when x values are close to pi by 2. You know that when x is exactly equal to pi by 2, that is 90 degree, sin pi by 2 is 1. But as you move away from pi by 2, slightly away from pi by 2, you can obtain quadratic approximation for the sine value of 89 degrees or 91 degrees or 92 degrees or 88 degrees using this formula, converting degrees to radians. यानी अगर आप इस फॉर्मूले को साइन ऑफ 88 degrees के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, approximate value. So you have to convert 88 into pi by 180. So this number will be used as x. So this number replaced here and calculate this.
1 minus this number, and that will give you an approximate value of sine of 88 degrees. And this is a second degree approximation. इसी तरह cos का है in question number 4. It asks to find out the quadratic approximation of cos, and you can go through this yourself, and I think I discussed this. Question number 7 to 16, we have to find a Maclaurin's polynomial of order n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. So considering some of these problems, can you see this page that has exercise 9.7 at the top? Can you hear me? Yes. So you are seeing this exercise 9.7 at the top? Yes. Okay. So अब हमने मैक्लॉरेंस पोलिनोमियल लिखने हैं किस ऑर्डर के, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का. सो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 सेलेक्ट किया है. fx इज इक्वल टू e पावर ax, a कोई कांस्टेंट है. So when I take the function value x is equal to 0, क्योंकि मैक्लॉरेंस पोलिनोमियल कहा गया है तो 0 रखा, तो e पावर 0 इज इक्वल टू 1. जब मैं डेरिवेटिव लूंगा इसका तो दैट विल बी a e पावर ax, और जब मैं इसमें 0 रखूंगा तो that becomes a e power 0, that means a. So first derivative value of the function at x equal to 0 is a, second derivative value of the function at x equal to 0 is a squared, third derivative value of the function at x equal to 0 is a power 3, and the third derivative value of the function at x equal to 0 is equal to a power n. तो हमने nth डिग्री तक जो है डेरिवेटिव वैल्यूज लिख ली हैं. उसके बाद मैक्लॉरेन पोलिनोमियल का मतलब ये है, दिस इज द मैक्लॉरेन पोलिनोमियल दैट वी डिराइव्ड लास्ट टाइम. अब अगर n इज इक्वल टू 0 लिखा जाए तो n इज इक्वल टू 0 का मतलब 0 डिग्री पोलिनोमियल. 0 डिग्री पोलिनोमियल का मतलब है आप डेरिवेटिव वाली टर्म सिर्फ से कंसीडर ही ना करें. दैट मीन्स fx इज इक्वल टू f0. व्हाट इज f0? f0 is 1. So e power ax is equal to 1. But how it can be? Remember that we are considering Maclaurin polynomial, and this result is in fact obtained for situation close to x is equal to 0. So when x is very, very close to 0, of course, this is approximately equal to 1. अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल लिखो तो इसका मतलब अब मैं इस पोलिनोमियल फार्मूले की पहली दो टर्म इस्तेमाल करूं, यानी जिसमें x पावर 1 तक हो. इसमें फंक्शन वैल्यू और डेरिवेटिव वैल्यू रख के हमारे पास अप्रोक्सीमेशन ये आ गई. एंड अगेन दिस इज क्लोज टू x इज इक्वल टू 0. n इक्वल टू 2 का मतलब है कि आप x पावर 2 तक की टर्म्स कंसीडर करें इस फॉर्मूले. तो x पावर 2 तक की एक्सपेंशन ये आ गई. n इज इक्वल टू 3 का मतलब है x पावर 3 तक की टर्म्स कंसीडर करें, उसकी वैल्यू ये आ गई. n इज इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि आप इसमें से 4 डिग्री टर्म तक, इस फॉर्मूले में 4 डिग्री टर्म तक इस्तेमाल करें, फंक्शन वैल्यू और डेरिवेटिव वैल्यू रखें. तो e पावर ax is approximately equal to this. These are all approximations of this. और अगर आपने जनरल रिजल्ट लिखना है तो पूरा पोलिनोमियल कंसीडर करें, और हमारे पास तो सारे डेरिवेटिव हम निकाल चुके थे फंक्शन के एट x इक्वल टू 0. दे वेर a स्क्वायर, a क्यूब, a4 एक्सेट्रा अप टू a पावर n. और उसने एक सवाल में एक और बात भी लिखी है, नहीं, सिग्मा नोटेशन, मैक्लॉरेन पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री फॉर सिग्मा नोटेशन. सिग्मा नोटेशन का मतलब ये कि ये एक इन्फिनिट सीरीज है. इसका जनरल फार्मूला जो है मैं लिखूं ऐसा कि k इज इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट टर्म आ जाए, k इज इक्वल टू 1 के लिए सेकंड टर्म आ जाए, k इज इक्वल टू 3 के लिए थर्ड टर्म आ जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सॉरी.
After that, I have considered the 10th problem from that set 7 to 16. 10th one is about sine pi x. तो हमें 0 डिग्री पोलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, उसके लिए हमने करना ये है कि हम जनरलाइज्ड डेरिवेटिव्स निकाल लें। साइन एक्स और पाई कॉस एक्स, इन दोनों में प्रॉब्लम एक होती है, और वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ हम डिस्कस करना चाहते हैं। फंक्शन is sin pi x, derivative will be pi cos pi x, second derivative will be minus pi square sin pi x, third derivative, दो टर्म पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी nth डिग्री टर्म क्या होगी। तो हम कुछ खास पैटर्न नोट करते हैं यहाँ पे। देखो भाई, फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है ऑफ 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, derivative value cos 0 is 1, so it is pi. X equal to 0, sin 0 is 0, so second derivative value is 0. Whereas third derivative value में फिर cos 0 आ गया तो आपको नॉन जीरो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पहला नॉन जीरो रिजल्ट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। In fact, this should be 3 pi square. फिर देखेंगे चौथा डेरिवेटिव 0 आएगा, और if you write down fifth derivative at 0, it should be, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव है तो दैट विल बी पॉजिटिव, और इसमें कॉस आएगा, लिहाजा पाई रेज टू पावर 5 डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव। तो हम देखेंगे कि ऑड ऑर्डर टर्म्स जो हैं वो प्लस माइनस आ रही। तो ये जनरलाइजेशन हमारे लिए ज़रा थोड़ी डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन दिस सेंस है कि हमारे पास साइन के एक्सपेंशन में फंक्शन वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स डेरिवेटिव सब 0 आ रहे हैं। सिर्फ ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स जो हैं वो नॉन जीरो आ रही हैं, और ऑड ऑर्डर टर्म्स जो हैं वो प्लस माइनस आ रही हैं। तो हम जनरलाइज डेरिवेटिव्स जो हैं वो ऑड ऑर्डर टर्म्स का लिखेंगे सिर्फ। दिस इज रॉन्ग। ऑड ऑर्डर टर्म्स का मतलब है 2n-1, 2n-1। अब देखिए कि अगर n अगर 1 हो तो क्या होगा, it will be pi only, n 1 हो this will be n-1, so that will be 1. तो ये थोड़ी सी मैं जल्दी में लिख दिया था, so I missed that, but now I have corrected it. तो हम साइन और कॉस के एक्सपेंशन में जो टर्म जीरो बन रही हैं उनको हम कंसिडर ही नहीं करते, और डायरेक्टली यहाँ हमने साइन पाई एक्स, पहली टर्म 0, तीसरी टर्म 0, पांचवी टर्म 0, ये अल्टीमेटली हम लिखेंगे नहीं। जो बच रही है टर्म पाई एक्स माइनस पाई क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर पाई एक्स पावर 5, पाई पावर 5 फैक्टोरियल माइनस, तो सिर्फ ऑड ऑर्डर टर्म्स लिखेंगे, -1 raised to power n-1, pi raised to power 2 and this is the sigma notation for the expansion of sin pi. अब इसको मैं nth टर्म कह रहा हूँ, हालांकि ये ऑड ऑर्डर में अगर n की वैल्यू 10 है तो ऑड ऑर्डर में ये क्या बनेगा नंबर, 2 × 10-1, यानी ये 19 बनेगा, यानी इसमें 19 टर्म्स हो। So whenever we consider expansion of sine and cosine, we have to face this problem. अगर यहाँ पे साइन के बजाय कॉस होता तो फिर ऑड ऑर्डर टर्म के बजाय इवन ऑर्डर टर्म्स बचते। आगे हम किसी प्रॉब्लम में कॉस का जो है जो पॉलिनोमियल निकालने का प्रोसेस है वो करेंगे। But in this set of questions that I am discussing right now of 9.7, एक function दिया हुआ है sin hyperbolic. Perhaps I have defined somewhere the sin hyperbolic while we were considering the integration, e power x minus e power minus x upon 2. So value of sin hyperbolic at x equal to 0 according to this is 0.
जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू यानी कॉस हाइपरबोलिक बनता है। तो कॉस हाइपरबोलिक 0 इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 1। तो साइन हाइपरबोलिक के जब डेरिवेटिव्स निकालूंगा तो आई विल नोट डाउन दैट इवन ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जीरो डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स डेरिवेटिव, एट डेरिवेटिव सब वैनिश हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर। सो अकॉर्डिंगली साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन जो है वो इस तरह से आएगा। एंड only x cubed by 3 factorial, x5 by 5 factorial, x7 by 7 factorial without any change of sign. Because sin hyperbolic और cos hyperbolic की डेरिवेटिव में चेंज ऑफ साइन नहीं होता। ये बात हम पहले कभी इस कोर्स में कर चुके हैं। तो साइन हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन ये आ गया। इसी तरह cos hyperbolic का एक्सपेंशन निकालूंगा तो वो ये आ गया। Another problem which is interesting, ये 1/1 plus x किताबों में ये इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से लिखा होता है, that you can see here. But this formula is in fact derived through Maclaurin polynomial. At x equal to 0, function value is 1/0 plus 1, that is 1. Derivative ये है x plus 1 raised to power minus 1. Minus 1 into x plus 1 raised to power minus 2. So derivative value at x equal to 1 is equal to minus 1. Sorry, not x equal to 1, x equal to 0. It's minus 1. सेकेंड डेरिवेटिव लूंगा तो -1 पहले से मौजूद है, फंक्शन की पावर में -2 है तो -2 आ जाएगा, जिसको मैं अलग अलग रख रहा हूँ बिकॉज दैट टेल्स मी के -1 की पावर 2 आ रहा है और 2 into 1 2 फैक्टोरियल आ रहा है। तीसरे डेरिवेटिव में जाऊंगा तो -1 अपनी जगह, -2 अपनी जगह, पावर -3 मल्टीप्लाई होगी तो -1 raised to power 3 into 3 फैक्टोरियल। तो ये पैटर्न बन गया। तो जब मैं nth डेरिवेटिव लिखूंगा तो जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा है उस डिग्री, उस पावर की -1 की टर्म आएगी, उसी नंबर का फैक्टोरियल आएगा, जबकि नीचे x plus 1 की जो पावर है वो एक ज्यादा। लेकिन x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव वैल्यू ये होगी। और ये सारा टेलर पोलिनोमियल में रखे हैं, f0 plus x times f prime naught plus x square upon 2 factorial into second derivative at x0। तो ये सब वैल्यूज रखते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी मिलता जुलता फॉर्मूला जो है वो ln में भी आता है। How to recognize the general formula when there is no specific pattern like cos and sine? This question has been asked, how to generalize the general formula. Generalization is साइन एंड कोसाइन में प्रॉब्लम आती है और दूसरे फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि साइन और कोसाइन में ये सिलसिला है कि जब हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो दो पॉजिटिव आते हैं, दो नेगेटिव आते हैं, दो पॉजिटिव आते हैं, दो नेगेटिव आते हैं, लिहाजा एफ एन टर्म नहीं लिख सकते हम। सिर्फ हम ऑड ऑर्डर टर्म या इवन ऑर्डर टर्म कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो लिखते हैं। तो ये काम जो है ये नहीं कर पाते, nth डिग्री टर्म नहीं लिख पाते, nth ऑर्डर टर्म नहीं लिख पाते, सिर्फ साइन और कोसाइन में, बाकी सब में करते। Yes, there is a specific pattern that arises when you start substituting all the values in the Maclaurin or Taylor polynomial formula. That is generalization. तो साइन के केस में f0 0, सेकेंड डेरिवेटिव 0, फोर्थ डेरिवेटिव 0, सिक्स डेरिवेटिव 0, सेवन डेरिवेटिव 0, so only odd order terms survive, all even order terms गायब हो गई। जब वो गायब हो गई उसके बाद हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं साइन और कोसाइन। I think that is the reply of your question. Okay, thank you. So I was talking about sin hyperbolic, cos hyperbolic, and then I have also talked about 1/x. तो जनरल पैटर्न उस वक्त तक सामने नहीं आएगा जब तक कि हम फंक्शन वैल्यूज और डेरिवेटिव वैल्यूज सारी निकाल के
मैक्लारन पोलिनोमियल फार्मूले के अंदर रखना। आई वाज सेइंग दैट जिस तरह का ये एक्सपेंशन है, इसी तरह का एक्सपेंशन लॉग का भी आता है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। Sometimes you are given mixture of functions, products of functions, x into e power x. अब मुझे जब x into e power x निकालना है, तो असल प्रॉब्लम जो है वो e power x निकालना है। I will not go into what? I'll not go into this part. कि fx is equal to x e raised power x and f0 is 0. First derivative, so it is e power x plus x e power x. Second derivative, e power x plus e power x plus x e power x. So that will become very complicated. इसमें तो इतना complicated नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसमें करते क्या है हम, अगर हमें ये प्रॉब्लम दिया हुआ कि इसका मैक्लॉरिन एक्सपेंशन निकालें, यानी x into e power x का, तो निकालेंगे हम e power x का ही। And I leave this for your exercise. E power x 0 is 1, e power x का derivative e power x and that is 1 at x equal to 0. तो टेलर पोलिनोमियल में जब तुम e पावर x की वैल्यूज एट 0 एंड इसके डेरिवेटिव वैल्यूज एट 0 रखोगे तो सब के सब 1 1 1 1 आएंगे। लिहाजा सिर्फ x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सर्वाइव करेगा। तो ये तुम कम, लेट मी राइट डाउन, डू इट योरसेल्फ। तो e पावर x का एक्सपेंशन निकालेंगे और उस एक्सपेंशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ x e पावर x। ओके जी, फ्रॉम 17 to 24 अब टेलर पोलिनोमियल की बात हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 18 e पावर x का टेलर पोलिनोमियल निकालें एट x नॉट इज इक्वल टू ln2। चलो भाई, जो कह रहा है वो करना पड़ेगा। फंक्शन है e पावर माइनस x, तो जब x की जगह मैं ln2 रखूंगा तो ये दरअसल -1 जो ln प्रॉपर्टी की वजह से 2 की पावर में चला जाएगा। तो ये ln 2 पावर -1 है। फिर ln और e का इन्वर्स होना जो है उसकी वजह से ln और e खत्म हो जाएंगे, 2 पावर -1 बचेगा, दैट इज 1/2। तो e पावर -ln2 की वैल्यू आई 1/2। जब मैं डेरिवेटिव लिखूंगा e पावर -x का तो -e पावर -x होगा और इस डेरिवेटिव वैल्यू एट x इक्वल टू ln2, तो भाई इसकी वैल्यू ln2 पर हम निकाल चुके, 1/2 थी। अब सिर्फ एक माइनस साइन का इजाफा, सेकेंड डेरिवेटिव में वो माइनस साइन गायब हो गया है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव में वो माइनस साइन फिर आ जा रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव में फिर गायब हो रहा है, फिफ्थ डेरिवेटिव में फिर आ जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव जो नंबर है वो ऑल्टरनेटली आ रहा है, यानी एक टर्म में पहली टर्म जो है वो तो 1/2 थी, लेकिन जो डेरिवेटिव की पहली वैल्यू आई है वो माइनस, यानी पहली टर्म प्लस दूसरी माइनस, फिर तीसरी प्लस चौथी माइनस, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। लेकिन द डिफरेंस है कि अब हमें टेलर पोलिनोमियल लिखना है जिसमें पावर x माइनस एक्स नॉट की आती है, x की नहीं आती। लिहाजा टेलर पोलिनोमियल में x माइनस एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, x minus x naught upon 2 factorial, x minus x naught square upon 2 factorial, x minus x naught cube upon 2 factorial, x minus x naught power 4 upon 4 factorial. So we have obtained the pattern of derivatives values of e power minus x at x is equal to ln2, all evaluated. So 1/2 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/2, so alternately plus minus आ रहा है, पहली टर्म पॉजिटिव है तो -1 raised to power n minus 1, x minus x naught raised to power n minus 1 upon n minus 1 factorial। तो जनरलाइजेशन हो गई इसकी सिग्मा नोटेशन में। तो अगर यही काम मैं आपसे कहूँ कि e पावर माइनस एक्स की बजाय e पावर x के लिए करें और ln2 के बजाय मैं आपसे कह दूं कि x नॉट जो है
वो आप ln5 लें, ठीक है। फंक्शन क्या करें, सिंपली ई पावर एक्स करें और टेलर पोलिनोमियल निकालें। अब क्या करना होगा, पावर x माइनस एक्स नॉट यानी x माइनस ln5 की आएंगी पावर्स, और डेरिवेटिव्स में ई पावर ln5 का मतलब होगा सिर्फ 5। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x और कहूं कि x नॉट इज इक्वल टू ln ऑफ 8, तो पावर जाएंगी x माइनस एक्स नॉट यानी x माइनस ln 8 की। डेरिवेटिव वैल्यूज आप निकालेंगे तो फंक्शन वैल्यूज से ही डेरिवेटिव वैल्यूज का अंदाजा हो जाएगा। फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू ln 8, यहाँ लिखेंगे आप ln 8, 2 जो है वो 8 की पावर में चला जाएगा। जब 8 की पावर में चला जाएगा तो ये e रेज़ टू पावर ln 64 हो जाएगा। ln और e कैंसिल होकर 64 बचेंगे, तो सारे फंक्शन वैल्यू डेरिवेटिव वैल्यूज हैं वो 64 ही आएंगी, लेकिन डेरिवेटिव लेते वक्त हर दफा 2 मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो इन दो क्वेश्चन को आप एक्सरसाइज क्वेश्चन समझ लीजिए या असाइनमेंट क्वेश्चन समझ लीजिए। प्लीज नोट डाउन द सेंटेंस। मैं नहीं लिख रहा हूं। ऑब्टेन nth degree Taylor polynomial, I repeat, please note down on your pages. Obtain nth degree Taylor polynomial of fx is equal to e power 2x at x naught is equal to ln 8. Why not make it a small assignment और आज रात 12 बजे तक जमा करा दो। And help your friends with a sense, in the sense कि आपने जो मैंने भी जो जुमला बोला है उसको आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप। Yes, I can repeat the whole sentence. Please check the whole sentence. Obtain nth degree Taylor polynomial for the function fx is equal to e power 2x at x naught is equal to ln 8। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो सेंटेंस आपने नोट किया है इसकी पिक लेके अपने ग्रुप पे असाइनमेंट के तौर पे मेरी तरफ से पोस्ट कर दीजिए। Let us look at expansion of log. मैंने कहा था कि हम एक्सपेंशन ऑफ लॉग देखेंगे। एक्सपेंशन जो लॉग है इसके साथ एक प्रॉब्लम है। अगर मैं टेलर पोलिनोमियल कर रहा हूं तो लॉग का डेरिवेटिव और लॉग की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड है। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट ln1 इज 0। लेकिन जो लॉग के डेरिवेटिव आएंगे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 2/x क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3/x पावर 4। तो वैसे ही पैटर्न आ रहा है कि जब भी मैं डेरिवेटिव लेता हूँ एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फोर्थ डेरिवेटिव में -1 इज पावर 3 आया है और 3 फैक्टोरियल आया है। थर्ड डेरिवेटिव में -1 इज पावर 2 आया है और 2 फैक्टोरियल आया है। लेकिन थर्ड डेरिवेटिव में नीचे x स्क्वायर आया है। तो 1/x प्लस 1 से थोड़ा डिफरेंट है ये। सो फंक्शन वैल्यूज एंड डेरिवेटिव वैल्यूज लिस्टेड, all listed values ultimately substituted in the formula। हम अब क्योंकि टेलर पोलिनोमियल लिख रहे हैं at x equal to x1, that means मेरे पास पावर आएंगी x माइनस एक्स नॉट की यानी x माइनस 1 की पावर आएंगी। x माइनस 1 की पावर जो पावर है वो उतना ही फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। वेयर एज फंक्शन वैल्यू 0, डेरिवेटिव वैल्यू 1, सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू -1, थर्ड डेरिवेटिव वैल्यू से पैटर्न आना शुरू हुआ।
फोर्थ डेरिवेटिव से पैटर्न आना शुरू हुआ, फिफ्थ डेरिवेटिव से, एंड वी सी दैट इधर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 3 बचेगा, और यहाँ पे है ही 2। यहाँ 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 4 बचेगा। यहाँ 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में 5 बचेगा। और लास्ट टर्म जो है इसमें, ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, x माइनस वन रिच पावर n माइनस वन n माइनस टू n माइनस, नहीं बिल्कुल सही लिखा है, n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल में से n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल होगी, नीचे n माइनस वन बचेगा। यानी जो x माइनस वन की पावर होगी वही नंबर नीचे आएगा। लिहाजा log x का एक्सपेंशन जो है x माइनस वन अपॉन वन माइनस x minus 1 raised to power 2 upon 2 plus x minus 1 raised to power 3 upon 3 and so on, and the generalization of the formula. Okay, sir. Instead of going into the details of theory in Article 9.8, I just consider some problems जिसके लिए हम सारे tools तैयार करते हैं। यहाँ मैंने अभी कन्वर्जेंस की बात नहीं की। Dishan has again asked के मैक्लॉरेन सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेस और नॉट। कन्वर्जेस का इशू हम बहुत जल्द आज ही डिस्कस करने वाले हैं। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल। हम जितनी भी सीरीज लिख रहे हैं इस वक्त, अभी तक तो हमारा फोकस जो था इस पेज पे, ये जो शेयर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, द फाइल मैक्लॉरेन टेलर पोलिनोमियल, इसमें अभी तक तो हमने फाइनाइट पोलिनोमियल्स लिखे हैं, लिहाजा कन्वर्जेंस का अभी कोई इशू नहीं। जब हम इन्फिनिट पोलिनोमियल लिखेंगे, एंड व्हेन आई से मैक्लॉरेन सीरीज एंड नाउ इट इज इन्फिनिट सीरीज, तो मैक्लॉरेन इन्फिनिट सीरीज का फॉर्मूला ये है, k is equal to 0 का मतलब है 0th डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 0, x पावर 0 is 1, k फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल is 1 प्लस x upon 1 f first at 0 plus x square upon 2 factorial second derivative at 0 plus x3 upon 3 factorial। मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, ये समेशन फॉर्म में लिखा हुआ था, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूँ। थर्ड डेरिवेटिव एट 0 सो ऑन, चलता रहेगा। ये इन्फिनिट सीरीज है, ये मैक्लॉरेन सीरीज कहलाएगी। तो जब मैं मैक्लॉरेन सीरीज की बात करूंगा, e पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन मैं लिख चुका हूं, उसमें सिर्फ मुझे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करना है। तो जब मैं इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करूंगा तो इस समेशन के जरिए ही मैं इन्फिनिटी तक एक्सपेंड किया हुआ रिजल्ट, यानी ये रिजल्ट मैंने पहले से ही उठाया है। आप इसको स्क्रैच से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ई पावर माइनस एक्स का मैक्लॉरेन पोलिनोमियल या टेलर पोलिनोमियल जो भी लिखा हो, उसके जरिए आप इसको स्क्रैच से कर सकते हैं। मैंने यहाँ से रिजल्ट लिखा है, when k is equal to 0, x power 0, 0 factorial minus 1 power 0, and that is 1. Then x is equal to 1, x upon 1 factorial, 1 upon x, plus 1 upon x square, minus 1 upon x cube, plus 1 upon x power 4. And this is an infinite series. So alternating series है ये। अब जब मैंने इन्फिनिट सीरीज लिख दी, अब इश्यू आएगा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का, बट वी विल लुक एट दैट लेटर ऑन। इन सवालों में ये बिल्कुल वही सवालात हैं जो पिछले चैप्टर में थे। अब हमें फाइनाइट पोलिनोमियल के बजाय इन्फिनिट सीरीज लिखनी है, मैक्लॉरेन सीरीज। सो आई हैव जस्ट रिटन डाउन रिजल्ट्स। यस, आई हैव कंसीडर्ड वन न्यू प्रॉब्लम, फिफ्थ। Now, the given function is log of 1 plus x. x is equal to 0 पे ये फंक्शन डिफाइन है। इससे पहले जब मैंने ln x कंसीडर किया था, तो ln x is not defined at x is equal to 0. तो मैं ln x का मैंने मैक्लॉरेन पोलिनोमियल नहीं लिखा।
क्योंकि ln x 0 पे डिफाइन नहीं है और मैक्लॉरिन पोलिनोमियल x इक्वल टू 0 पर ही कंसीडर किया जाता है फंक्शन और उसकी डेरिवेटिव वैल्यू। हाँ, अब ln 1 प्लस एक्स आ गया, अब मैं मैक्लॉरिन एक्सपेंशन लिख सकता है। क्यों? इसलिए कि ln ऑफ 1 प्लस 0 is perfectly defined. उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज परफेक्टली डिफाइंड। उसका सेकंड डेरिवेटिव, उसका थर्ड डेरिवेटिव, उसका फोर्थ डेरिवेटिव, तो ln 1 प्लस एक्स के सारे डेरिवेटिव्स डिफाइंड हैं, लिहाजा मैं इसका मैक्लॉरिन एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। तो फंक्शन एंड फंक्शन की डेरिवेटिव वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू 0 ऑल obtained, and then we see that it ultimately simplifies to ln 1 plus x is equal to x minus x square upon 2 प्लस एक्स। क्यों? इसमें भी फैक्टोरियल्स कैंसिल हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से चले चले आ रहे हैं। Now when I'm talking about infinite series, the issue of convergence and divergence will arise. Okay, but we will uh, discuss that later on. अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है इसमें ये ऑलरेडी मैं फाइल आपसे शेयर कर चुका हूँ, रिसोर्स में मौजूद है। As soon as we start talking about infinite expansion, जब मैक्लॉरिन सीरीज होगी तो मेरा टूल ये है, यानी फॉर्मूला फॉर इन्फिनिट मैक्लॉरिन सीरीज। अगर टेलर सीरीज है तो मेरा फॉर्मूला ये है, इन्फिनिट टेलर सीरीज। So when we talk about infinite series, then we start thinking about convergence or divergence, and not only convergence and divergence, there is something more to it. We will be using ratio test mostly, or root test, and the conditions for convergence in ratio test or root test will lead to few things. Maybe the series is convergent for every value of x. Maybe the series is convergent only over an interval, say a to b. So we will be considering not only convergence, but interval of convergence and radius of convergence. So let us see some examples. अच्छा, ये बता दूं कि एक्सरसाइज 9.8 में टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज प्रॉब्लम्स हैं 1 to 22 हैं, जो मैंने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं किताब से कॉपी करके, और रेडियस और इंटरवल के क्वेश्चन 9.8 में 29 to 50 हैं, एंड दैट इज द फुल स्टॉप फॉर द सिलेबस ऑफ मिड टर्म कमिंग, राइट? Chapter 7 and Chapter 9 up to this point. अच्छा सर, from these questions, पहले तो मैंने मैक्लॉरिन सीरीज लिखी e पावर ax। यहाँ तो अभी हमें यानी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात हमसे नहीं पूछी गई, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात पूछी गई क्वेश्चन नंबर 29 एंड ऑनवर्ड। तो ये सवाल जो हैं ये मैं तकरीबन डिस्कस कर चुका हूँ, या इस किस्म के प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूँ। लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन नंबर, मैंने कौन सी रेंज कही थी, सेकंड वाली, 29 to 50। लेकिन उससे पहले ही ये जो 9 to 22 है, इसमें से एक क्वेश्चन मैंने, या एक से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 18 क्वेश्चन तो ln की एक्सपेंशन एट x इज इक्वल टू e, x नॉट इज इक्वल टू e। आई होप यू कैन फॉलो दैट। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ मैंने आपको, इसमें उसने सीरीज दी हुई है, इस पार्ट में सीरीज दी हुई है। फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज एंड फाइंड अ फेमिलियर function that is represented by the power series on that interval.
दो काम कह रहा है, एक तो ज़रा इसकी आप वो कंसीडर करें कन्वर्जेंस, और दूसरा ये कि अब जब आप कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके होंगे तो कुछ सीरीज़ की पैटर्न्स जो हैं वो समझ में आएंगे आपको। फॉर एग्जांपल ये सीरीज़ जो है ये टेलर सीरीज़ है या मैक्लारन सीरीज़ है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. This is McLaurin series. No, it is not McLaurin series. McLaurin series में x की पावर्स होती हैं. Taylor series. It is Taylor series. और टेलर सीरीज में पावर्स आती हैं x माइनस एक्स नॉट की. ठीक है? So what is x नॉट in this case? Not 3. x माइनस एक्स नॉट है. So minus 3 है. So ये alternate प्लस माइनस पावर्स किस फंक्शन के मैक्लॉरिन टेलर सीरीज में आई थी? fx is equal to e power what? Alternate प्लस माइनस साइन आया था हमारे पास. नहीं, ई पावर के तो फंक्शन में नीचे फैक्टोरियल बचे थे. थिंक अबाउट अ सीरीज जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा था. चलो बताता हूं मैं तुम्हें. दिस इज x प्लस 4 विद x नॉट इज इक्वल टू माइनस 3. 1/x+1 जो थी वो सीरीज ऐसी थी जिसमें 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब ऑल्टरनेट प्लस माइनस पावर आ रही थी. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि डेरिवेटिव जो निकल रहे थे उसमें -1 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहे थे, इसलिए बच रहा था x+1 में. अब मैंने क्या लिख दिया इसको x+4. क्यों लिख दिया इसको x+4? x+1 क्यों नहीं लिखूं मैं? Please verify that this function 1/x+1 उसका टेलर एक्सपेंशन x नॉट इज इक्वल टू -3 पे निकालूं तो ये आएगा कि नहीं आएगा. इसके डेरिवेटिव्स हम लिख चुके, so you know how to do that. तो यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, सीरीज देखकर पहचानना है किस फंक्शन की सीरीज है. Of course that's a bit tricky and I'll discuss more about that later on. For the time being, look at the general term. Allahu Akbar. इंटरनेट का झटका, सॉरी फॉर दैट. आई एम बैक. इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन का झटका था, सॉरी फॉर दैट. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें ऐसी होती रहती हैं. So we were considering this infinite series given in exercise 9.8, question number 22. इसका हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है. तो हमने कहा था कि मोस्टली हम एब्सोल्यूट रेशियो टेस्ट इस्तेमाल करेंगे और वो रेशियो टेस्ट भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के. तो जनरल टर्म जो इसकी है वो क्या है? x+3 रेज़ टू पावर k+1. ये
k प्लस वन टर्म है, जनरल टर्म ये है, k इज इक्वल टू 0 के लिए 1, k इज इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म, k इज इक्वल टू 2 के लिए ये टर्म एंड सो ऑन. मॉड लगा दिया, इसके साइन नहीं आ रहे, तो यू k प्लस वन अपॉन यू के, दिस डिवाइडेड बाई दिस कम्स आउट टू बी दिस. When k approaches infinity, this uk plus 1 upon uk approaches, इसमें k नहीं आया, लिहाजा x plus 3 mod ही लिमिट है. Now if this limit will be less than 1, convergence will be there. So the given series is convergent under this condition, x plus 3 mod less than 1, convergence due to ratio test. X plus 3 mod less than 1 is an interval. The interval centered at -3. One step to the right, one step to the left. This is the step. So -4 to -2 is the interval of convergence. This number here is the radius of convergence. One step to the left, one step to the right. So radius of convergence is this, and center of convergence is -3, क्योंकि यहाँ हमने एक्सपेंशन जिस पॉइंट पे लिखा है x इक्वल टू -3, अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो वो सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस है दैट पॉइंट. ये जो 19 से 22 हैं, they are simple questions. You will not find any difficulty for you, but let us look at this power series. 29 to 50. There's a last part of exercises that are part of the midterm syllabus. And here, in this range of questions, let me look at the book. Question यही है या कुछ और है? 9.8, 29.2. Find the radius of convergence and the interval of convergence from 29 to 50. यही मैंने मार्क कॉपी किया हुआ है. Okay. So where I was? No, I was in this page. Yes. अच्छा जी, look at 33. Why 33? मैंने ऐसी आर्बिट्रेली काम 33 से शुरू किया है, और काम भी जरा थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया. अगर मैं 33 को देखूँ गौर से, तो व्हाट इज द जनरल टर्म? द जनरल टर्म इज 5 raised to power k upon k square and x power k. Now see the difference. जब हम टेलर और मैक्लॉरेन पोलिनोमियल से पहले जो इनफिनिट सीरीज हम पढ़ रहे थे, उसमें टर्म्स कांस्टेंट हुआ करती थी, लेकिन अब ये सीरीज वो हैं जिनमें x की पावर इस्तेमाल हो रही है या x माइनस समथिंग की पावर इस्तेमाल हो रही है, लाइक दिस 46. So these are infinite series which are powers, which are generally called power series. So we are exploring power series convergence issue. So what is uk plus 1 for this question number 33? 5 raised to power k plus 1, x raised to power k plus 1 divided by k plus 1 4 raised to power 2. तो uk plus 1 upon uk यहाँ मैंने डायरेक्टली किया हुआ है, और सिंप्लीफाई करके हमने इस फॉर्म में लिया है. What I am dealing is dealing with uk plus 1 upon uk, which is a function of k, because k square upon k plus 1 whole square बचा है, उसमें से k square सिंप्लीफाई करके ये लिखा और k approaches infinity लगाया. So as k approaches infinity, this part becomes 0. The result comes out to be 5x. अब रेशियो टेस्ट कहता है कि जो लिमिट हमारे पास आई है, अब मैं इस पे मॉड लगा देता हूँ.
mod 5x is less than 1. And that means mod x is less than 1 by 5. तो यहाँ जो नंबर आता है that is the radius of convergence 1 by 5. ये है x minus 0 mod less than 1 by 5. So this is centered at x is equal to 0. 1 by 5 steps to the right and minus 1 by 5 steps to the left. So this is the interval of convergence defined by this condition. Center of convergence is 0 because here powers of x are 0. Series involves only powers of x, not x minus x naught. So whenever there is power x, powers of x are there in a power series. If there is convergence, the center of convergence will be 0. उसके बाद मैंने 32 भी डिस्कस किया है. 32 जो है उसके अंदर न्यूमरेटर इज k फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर इज 2 पावर k x पावर k. इसको uk प्लस 1 अपॉन uk करके जो सिंप्लीफाई किया तो इट कम्स आउट टू बी k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x. एंड एज k गोज टू इन्फिनिटी, क्योंकि k न्यूमरेटर में है और किसी तरह डिनोमिनेटर में नहीं जा सकता, so this goes to infinity which is greater than 1, so this is not convergent. When it is not convergent, there is no question of interval of convergence and no question of center of convergence. Then question number 40. हम mod uk plus 1 upon uk कंसीडर कर रहे हैं. तो x पावर k plus 1 का मतलब है x into x power k plus 1 log of k plus 1 whole square divided by this. That means x power k goes to denominator, k into log k whole square, x power k cancel out. इस पूरे मॉड में जो वेरिएबल पार्ट है मॉड x उसको अलग कर दिया. द पार्ट दैट इन्वॉल्व्स k उसको अलग कर दिया, जिसमें से एक पार्ट विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम k अपॉन k प्लस 1 goes to 1 as k approaches infinity. जबकि ये वाला जो पार्ट है इसकी लिमिट निकालने के लिए what you will have to do, ln k upon ln k plus 1 infinity upon infinity form है, तो you will have to take into consideration application of L'Hopital rule. So 1 upon k upon, and this will after one step of L'Hopital rule will become k plus 1 upon k. क्योंकि ln k का डेरिवेटिव 1 अपॉन k होगा, k नीचे चला जाएगा, ln k plus 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन k plus 1 होगा, जब k plus 1 ऊपर चला जाएगा. And that is ultimately equal to 1 plus 1 upon k. So that goes to 1. So this goes to 1, this goes to 1. Only thing left is mod x, which does not involve k. Mod x is less than 1. The radius of convergence is 1. Interval of, क्योंकि center of convergence 0 है, x minus 0. So interval of convergence minus 1 to 1. Question number 50. The last question that I am discussing for midterm study. Question number 50, 2x minus 3 raised to power 5, k divided by 4 raised to power 2k plus 1. जब मैं k की जगह k plus 1 रखूंगा तो 2x minus 3 raised to power k plus 1 upon 4 raised to power 2k plus 2. तो 4 raised to power 2 अलग, 4 raised to power 2k अलग, divided by this thing. So 4 raised to power 2k in the numerator, 2x minus 3 raised to power k in the denominator. This cancel out, 2x minus 3 raised to power k cancel out. I am left with 1 power of 2x minus 3. Denominator में 16 है, इसमें k involved नहीं हो रहा. जब k involved नहीं हो रहा तो k approaches infinity का मतलब है ये limit आ गई. Limit should be less than 1 for convergence. So ratio test tells me that center of convergence, radius of convergence, all will be obtained from this inequality. But first, let us put this inequality into this form. What is this form? This form is x minus x naught
less than r. And this is the representative of all x values that are at a distance from x naught, at most by r. So x naught plus r, x naught minus r, both are not included, only x values in between. So 2x minus 3 upon 16 mod less than 1 को हमने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी से रिड्यूस किया इसमें, जिससे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मुझे ये नजर आया, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस मुझे ये नजर आया, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सेंटर माइनस 3/2 सेंटर प्लस 3/2. तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये आया. Now this is it for coming midterm course, and take out a piece of paper and solve a problem. The problem is a quiz, an unannounced quiz. I don't know what is the number, but I want you to do one thing. Find Maclaurin series for fx is equal to e power minus 3x मैक्लॉरेन सीरीज लिख दिया तो इसका मतलब इन्फिनिट सीरीज, और मैक्लॉरेन लिख दिया तो इसका मतलब है पावर्स ऑफ एक्स ऑन जी, एंड डिटरमाइन center of convergence interval of convergence, radius of convergence, if convergence is there, or should I say resulting Maclaurin series is convergent at all. जानी कहाँ हो जानी? कोई हो रहा है? जानी आ जाओ. हाँ नहीं उधर है वो, उधर आप मीटिंग ज्वाइन करो. सर ये क्वेश्चन आप रीड करें नहीं तो. Find Maclaurin series for the function fx is equal to e power minus 3x
and determine center of convergence, interval of convergence, radius of convergence if the resulting Maclaurin series that you obtain is convergent at all. I've just shared this on WhatsApp. You can submit it to TA through email till 6 p.m. अरे मुश्किलें इतनी बड़ी तुम पे क्या आसान हो गई, फिक्र नहीं करो जुएब। I'm going to terminate the recording now.